Okay, good morning class. In the previous lectures, we have discussed about permutations and combinations and some other counting principle based problems. Okay, now we are going to discuss about the next topic, that is called probability theory. Okay, so here we will talk about probabilities. In this one, first of all, the probability, here we are saying probability is a mathematical modeling of phenomena of chance or randomness. Okay, it is the mathematical modeling of phenomena of chance or randomness. Okay, so for example, whenever we are tossing a coin, okay, whenever we are tossing a coin, now it may lead to head as well as tail. Okay, but we cannot say that whether head will appear or tail will appear by sure. Okay, Uh, so this is called to be as a randomness, means it is chance by which we are getting head or we are getting tail. Okay, in the same way, by here we are saying any side of the coin is as likely to occur as the other, and hence the chance of getting a head is 1 in 2. Why we are saying 1 in 2? Because there are two outcomes, that will be either head or tail. So therefore, the chance of getting a head will be 1 in 2. ठीक है, 2, because one is head and the other one is tail. So that's why this is 2. Out of these two, one possibility is getting head, and therefore the probability of getting head will be 1 upon 2. दो आउटकम में से एक आउटकम क्या है, हेड है, तो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 1 by 2. So this is the basic meaning of probability. Okay, it is simply modeled mathematically the problem of randomness or the problem of getting an event to occur. Okay, so this is called to be as probability. Okay, and this there are some basic terminologies that we will use throughout the context of probability theory, and that is experiment. The first term that we are going to use here is experiment. Now this experiment is any activity from which the results are obtained. Okay, experiment is what? Any activity from which the results are obtained. Okay, now this experiment is a random experiment. This experiment can be a random experiment, and in context to probability theory we will talk about only a random experiment. Now what is the meaning of random experiment? So in this one we are saying the outcomes or the results cannot be predicted with certainty. ठीक है, whenever the outcomes or the results cannot be predicted with certainty, then that experiment is called to be as random experiment. यानी किसी भी एक्टिविटी के रिजल्ट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते विथ 100% श्योरिटी, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बोल रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, and whenever we are talking about probabilities, in that case we are focused on random experiments. Okay, there are some examples. The one example can be flip a coin. ठीक है, तो आप कॉइन को फ्लिप करते हो या कोई डाइस को
आप रोल करते हो डाई को, ठीक है। तो ये दोनों ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में आप आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप बिना टॉस के ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 आउटकम्स हैं, इन 6 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, ओके। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट what will be the result, whether 1 will appear or 2 will appear or 3 will appear or anything else, okay. So that's why these two are the examples of random experiment, because here the results cannot be predicted with certainty. Yes, anyone having doubts up to here, you can ask. Any queries up to this point? So I have told you what is experiment, what is random experiment. Okay. Now moving to the next. Here we have the next term that is called to be a sample space. Okay. It is denoted by generally capital S. Capital S denote sample space of any random experiment. Now what is the sample space? The set of all possible outcomes of an experiment is called to be as sample space. ठीक है, यानी कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, उन सभी रिजल्ट्स को अगर हम एक सेट में प्लेस करें तो उस सेट को हम बोल रहे हैं सैंपल स्पेस। जैसे अगर हम टॉस करने की बात करें क्वाइन के, तो क्वाइन जब हम टॉस करते हैं तो उसमें दो पॉसिबल आउटकम है, आइदर हेड विल अपीयर और टेल विल अपीयर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन विल कंसिस्ट ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज हेड एंड टेल, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो उसमें 6 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो देयरफॉर एट दैट स्टेज द सैंपल स्पेस विल कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 अप टू 6। तो दीज आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स, ओके। तो हियर वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स। जैसे अगर हम कोई डेक ले रहे हैं कार्ड का, तो 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें सैंपल स्पेस में टोटल 52 वैल्यूज होंगे, ठीक है। अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं या रोल करते हैं तो उस केस में 6 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 1 से लेकर 6 तक। ऐसे ही अगर हम कोई क्वाइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, आइदर हेड और टेल, ठीक है। तो दीज आर द सैंपल स्पेस फॉर एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्ड्स के लिए। तो 52 कार्ड्स हैं, तो 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो सैंपल स्पेस में हमारे टोटल 52 वैल्यूज होंगे। अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में जो है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो इन सबको हम सैंपल स्पेस में ले रहे हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर आउटकम को हम सैंपल पॉइंट बोल रहे हैं, जिसको हम इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज सैंपल पॉइंट और इवेंट, ठीक है। तो गेटिंग 1 whenever we are rolling a die, that is one event. Getting 2 whenever we are rolling a die, this will be one event, and so on. Getting head, that is one event. Getting tail, that will be another event whenever we toss a coin, ठीक है। तो इस चीज को हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं या इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमने एग्जांपल लिए हैं, कार्ड्स का, डाई का या क्वाइन का, ठीक है। ये तीनों ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है,
और तीनों के लिए हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ s से। n ऑफ s, n ऑफ s का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ns की वैल्यू पहले एग्जांपल के लिए क्या होगा 52, दूसरे एग्जांपल के लिए क्या होगा 6, और तीसरे एग्जांपल के लिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए हो गया 6 और इसके लिए हो गया 2। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 6 हो गया और इसके लिए 52 हो गया। तो यहाँ पे ns की वैल्यू हो गई 52, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। देन वी कैन यूज इवेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, तो यही बोला गया है इसमें। An event is a set of outcomes from the sample space, or in other words, a subset of the sample space S is called to be as event. ठीक है, तो इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के उसको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं, और एक इवेंट में एक या एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S। ठीक है, तो दिस थिंग इज कॉल्ड टू बी एज इवेंट। तो हियर वी हैव एग्जांपल, गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इज एन इवेंट, रोलिंग अ 5 इज एन इवेंट। अगर हम किसी डाइस को रोल कर रहे हैं तो 5 आउटकम हो, ये एक इवेंट हो गया। ठीक है, और एक इवेंट जो है इट कैन इंक्लूड मोर देन वन आउटकम ऑल्सो। लाइकवाइज चूजिंग अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड इज ऑल्सो एन इवेंट। ठीक है, क्योंकि डेक ऑफ कार्ड में टोटल 4 किंग होते हैं, तो उन 4 किंग में से कोई एक किंग हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सेवरल आउटकम हो गया। सेवरल आउटकम क्या, तो पहला तो आउटकम ये हो गया कि हम किंग लें, और दूसरा आउटकम ये हो गया कि उस किंग में से हम कौन सा किंग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट वाला, एस वाला, या क्या बोलते हैं उसको, जो भी अदर 2 हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो उन 4 में से हम कौन सा वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पेड है, ठीक है, या फिर आपका एक और होता है, तो इन चारों में से हम कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा रोलिंग एन इवन नंबर, तो इट इज ऑल्सो एन इवेंट। अब ये जो है सेवरल आउटकम इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि इवन नंबर का मतलब आउटकम आपका 2 भी हो सकता है तब भी इवन नंबर होगा, आउटकम 4 होगा तब भी इवन नंबर होगा, और आउटकम 6 होगा तब भी इवन नंबर होगा। ठीक है, तो हियर वी आर इंक्लूडिंग मोर देन वन आउटकम्स इन एन इवेंट। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि इवेंट में एक ही आउटकम हो, रादर वी कैन इंक्लूड मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, आप वन सैंपल पॉइंट भी ले सकते हो या आप मोर देन वन सैंपल पॉइंट भी ले सकते हो, एंड दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S। यस, एनीवन हैविंग डाउट्स कैन प्लीज अप टू टेल मी। सो यस तुषार। Sir, as you told us कि इसमें sir in an event can include several outcomes. Yes. But sir, if we
see के इसमें सर we are choosing only one king ना sir. So there is no sort of talk regarding that, like it should be of spades or diamonds or hearts. Sir, यस the outcome यस, is one only. आउटकम इज ऑन वन ओनली। लेकिन देखो, मैं जब हम इसकी बात कर रहे हैं चूजिंग अ किंग, ठीक है, तो यहाँ सैंपल स्पेस में टोटल हमारे पास 52 पॉसिबिलिटीज हैं, Yes ठीक है, sir. क्योंकि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। जब हम उसमें डेक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है, देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम आपको याद होगा तो उसमें हमने बताया था, एक किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कि डेक और आई थिंक क्या दूसरा वर्ड था, Pack of cards. पैक, हाँ, डेक और पैक में क्या डिफरेंस है। तो Yes मैंने sir. आपको बताया 13 था का डेक set का होता है. मतलब होता है कि हम एक 52. कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, Yes एक sir. कलर यूज कर रहे हैं, Yes sir. मतलब जो चार चीजें होती हैं, आई थिंक स्पेड, हर्ट और एस, और एक चौथा और है, ठीक है। Yes sir. तो Diamond. डायमंड, यस डायमंड। तो इन चारों में से हम जब एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, डायमंड हो गया या एस हो गया या आपका जो है हार्ट हो गया, तो ये एक डेक हो गया, ठीक है। तो उस केस में जब हम किंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो किंग जो है उन चारों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि ये सेवरल आउटकम को इंक्लूड कर रहा है। पहला आउटकम तो ये है कि वो किंग है, दूसरा आउटकम ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेट का है, मतलब कि वो डायमंड का है या हार्ट का है या स्पेड का है या फिर जो है आपका एस का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये मोर देन वन आउटकम इंक्लूड कर रहा है। लेकिन अगर हम केवल किंग की बात बोलते हैं कि केवल हमें किंग लेना है, तो वो तो एक सिंगल इवेंट हो गया, ठीक है, मतलब सिंगल आउटकम हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, अगर ये मेंशन होता क्या कि किंग ऑफ स्पेड या किंग ऑफ हार्ट, तब तो ये सिंगल आउटकम होता। लेकिन अगर हम केवल किंग की बात कर रहे हैं तो ये मोर देन वन आउटकम है, क्योंकि वो किंग जो है उन चारों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। Okay So sir. Okay. that's why we are saying that in it include several out, मतलब more than one outcome, ठीक है। अगर ये मेंशनड होता कि Okay. चूजिंग अ किंग ऑफ हार्ट या चूजिंग अ किंग ऑफ स्पेड, तो ये एक सिंगल आउटकम होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि Okay मेंशन sir. नहीं है, Okay तो sir. इसलिए उस केस में क्या होगा, देयर विल बी मोर देन वन आउटकम, क्योंकि वो चार किंग आप ले सकते हो, ओके। Okay चूजिंग sir. अ किंग का मतलब यहाँ एक किंग नहीं है, चूजिंग किंग टाइप है, ओके। किंग को हम एज ए टाइप यूज कर रहे हैं, और किंग के लिए हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो चारों में से किसी भी कलर में हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट विल Okay हैव sir. सेवरल आउटकम। सेवरल आउटकम कौन कौन से होंगे? किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ एस, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इंक्लूड सेवरल आउटकम। इन द सेम वे जो सेकंड एग्जांपल है, इसको भी हम सेवरल आउटकम बोल रहे हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो इवन नंबर 2 भी आ सकता है, इवन नंबर 4 भी हो सकता है, इवन नंबर 6 भी हो सकता है। तो इट इंक्लूड 3 सैंपल पॉइंट्स, getting 2, getting 4, getting 6, and that's why we are saying Okay this is sir. an example of several outcome. Got that? Okay sir. Okay. Okay, anyone else? Okay, so we can move further here. There is one more terminology that is called types of event. ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए whenever we are solving the problems related to probability, because these all can affect the answers of your problem, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। सो हियर वी आर सेइंग ईच इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर इवेंट। अगर एक इवेंट जो है, यानी कि एक पॉसिबल आउटकम जो है दूसरे पॉसिबल आउटकम से अफेक्ट नहीं होता, तो उस इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव
You toss a coin 3 times and it comes up heads each time. What is the chance that next toss will also be a head? मतलब क्या है कि आपने एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया और तीनों बार हेड आया, then what is the chance that next toss will also be a head? तो यहाँ पे दो इवेंट हैं। एक इवेंट है कि हमने 3 बार टॉस टॉस किया और तीनों बार हेड मिला। दूसरा इवेंट है कि जब हम नेक्स्ट टॉस कर रहे हैं तो हेड मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉस में हेड मिलेगा, ये जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको प्रीवियस 3 टाइम हेड मिला है या नहीं मिला है। ओके, द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ हेड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस अकरेंस ऑफ हेड्स। इसलिए ये दोनों ही इवेंट क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। कि पहले क्या आया था और नेक्स्ट क्या आएगा, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। गॉट दैट? द चांस विल बी सिंपली 1/2 अगेन, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम है, यू कैन गेट हेड और टेल। तो देयरफॉर गेटिंग हेड प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 यानी 50%, जस्ट लाइक एनी अदर टॉस ऑफ द क्वाइन। तो ये इस बार पर डिपेंड नहीं करता कि पिछली 3 बार हेड मिला है तो चौथी बार भी हेड मिलेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, नेक्स्ट, what it did in the past will not affect the current toss, and that's why we are saying that it is independent. Next toss of the coin is totally independent of any previous tosses. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है। अब हम डिपेंडेंट इवेंट की बात कर लेते हैं, जिससे आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि कब हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं और कब हम इसको डिपेंडेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट डिपेंडेंट इवेंट। तो इवेंट्स कैन बी अफेक्टेड बाय प्रीवियस इवेंट्स या एनी अदर इवेंट इफ द आउटकम ऑफ इवेंट is affected by the outcome of another event, then they are called to be as dependent. एक इवेंट का जो आउटकम है या जो रिजल्ट है, अगर दूसरे इवेंट के रिजल्ट पे डिपेंड करे तो इसको हम डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट अस से दिस वन, ड्राइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक। तो अगर आप किसी डेक से 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो उस केस में ये जो है डिपेंडेंट इवेंट होगा, क्योंकि एक कार्ड आपने जो ड्रॉ किया है तो अगला जब आप कार्ड ड्रॉ करोगे वो पिछले कार्ड के ड्राइंग पे डिपेंडेंट होगा। जैसे मान लो आपको जो है 2 एस ड्रॉ करना है, पहली बार आपको एस मिल गया तो दूसरी बार भी एस मिलेगा, तो वो 2 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आफ्टर टेकिंग 1 कार्ड फ्रॉम द डेक देयर आर लेस कार्ड्स अवेलेबल एंड सो द प्रोबेबिलिटीज चेंज। गॉट दैट? जैसे आपने 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो पहली बार आपके पास 52 ऑप्शंस होंगे, लेकिन जब आप दूसरा कार्ड ड्रॉ करोगे तो आपके पास केवल 51 ऑप्शंस होंगे। तो इसलिए पहली बार की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी और दूसरे बार की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। लेकिन जो अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें टॉसिंग अ कॉइन की, तो वहां पे जो आप जितनी बार टॉस करोगे हर बार प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार हेड आ गया तो अगली बार हेड नहीं आएगा तो इसलिए प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट इवेंट था, लेकिन ये जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि जो अकरेंस है दूसरे इवेंट का वो पहले इवेंट के अकरेंस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे पहला इवेंट क्या है, जो हम फर्स्ट कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा इवेंट क्या है, जो हम सेकेंड कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले इवेंट का अकरेंस जो है वो दूसरे इवेंट के अकरेंस को अफेक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, then we have some more terminology. There is one term that is called replacement.
रिप्लेसमेंट का मतलब होता है व्हेन वी पुट ईच कार्ड बैक आफ्टर ड्रॉइंग इट, द चांसेस डोंट चेंज। अगर हम कोई कार्ड ड्रॉ करें और वापस हम डेक में डाल दें, तो उस केस में जो चांसेज हैं किसी इवेंट के, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हर बार हमारे पास सेम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, और उस केस में ये जो इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो ये कार्ड ड्रॉ करने का इवेंट जो है डिपेंडेंट केवल तभी होगा जब हम रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं करते। अगर हम रिप्लेसमेंट अलाउ कर रहे हैं तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर आपको दो कार्ड ड्रॉ करना है तो आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, फिर वापस डेक में डाल दिया, और फिर आप दूसरा कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में प्रोबेबिलिटी आपकी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों ही बार आपके पास सेम सैंपल स्पेस अवेलेबल होगा। तो इसलिए वहां पे जो है एक इवेंट का अकरेंस दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब दूसरे के अकरेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं है तो उस केस में ये डिपेंडेंट इवेंट होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट द चांसेस विल बी चेंज्ड एंड देयरफॉर द इवेंट्स आर कॉल्ड टू बी एज डिपेंडेंट। तो अगर रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट होगा, और अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट होगा। वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू कार्ड्स, playing cards. Okay, so move to the next. There is one more term that is called mutually exclusive events. तो ये आप टर्म पहले से ही जानते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इवेंट्स के टर्म में बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? So here we are saying it means we cannot get both events at the same time. For example, अगर हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो पॉसिबल इवेंट्स हैं। एक इवेंट हो सकता है गेटिंग हेड और दूसरा इवेंट हो सकता है गेटिंग टेल। और ये दोनों इवेंट जो हैं कभी भी सेम टाइम पे अकर नहीं हो सकते, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट में आप हेड और टेल दोनों नहीं ऑब्टेन कर सकते। आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल, बट नॉट बोथ। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टू बी एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। Okay, the occurrence of getting head or the occurrence of getting tail is a mutually exclusive event. Got that? In the same way, वही मैंने अभी बताया आपको, इट इज आइदर वन और द अदर, यानी या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, लेकिन दोनों नहीं मिलेगा एक ही बार में। इसका दूसरा एग्जांपल है टर्निंग लेफ्ट और राइट। तो या तो आप लेफ्ट टर्न लोगे या तो राइट टर्न लोगे, एक ही टाइम पे लेफ्ट और राइट दोनों टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये भी एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जाम्पल है। हेड्स एंड टेल्स, ये भी जो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जाम्पल है। किंग्स एंड एसेस, दिस इज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, जरा एक कोई बताएगा ये चार जो होते हैं इनका नाम क्या था? एक हार्ट है, एक डायमंड, एक स्पेड, और चौथा क्या था? क्लब। ओके, आई एम नॉट मच श्योर फॉर अबाउट दैट। तो ये किंग्स एंड एसेस को भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं। ओके, तो आई थिंक एसेस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है?
ओके, हाँ, दैट्स गुड वैभव। यस, किंग्स एंड एसेज ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि किंग और, हाँ, इसको इक्का बोलते हैं एक तरह से। यस, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि या तो आपको बादशाह मिलेगा या इक्का मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक ही कार्ड दोनों नहीं हो सकते। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक है, ओके। So I think it will be clear to you. Kings and Aces are mutually exclusive. Aces का मतलब यहाँ इक्का है और Kings का मतलब बादशाह है, जैसा आपने बताया। तो अगर हम इसकी बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक कार्ड या तो किंग होगा या तो एस होगा, या तो इक्का होगा या तो बादशाह होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही कुछ और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन नहीं होगा, तो इसका एग्जांपल ये है, किंग्स एंड हार्ट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि हम एक किंग ले सकते हैं जो हार्ट्स का हो। ठीक है, गॉट दैट? तो एक बादशाह हो सकता है जो पान में हो, इसको पानी बोलते हैं ना, तो उसमें हो, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन किंग्स एंड एसेस जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ये एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये एसेस हैं और ये किंग है। ठीक है, तो एसेस एंड किंग्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि दोनों एक नहीं हो सकते। के अलग होगा, ए अलग होगा। ठीक है, एक ही कार्ड दोनों नहीं हो सकते। और लेकिन हार्ट्स एंड किंग्स जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि किंग जो है इन चारों में से किसी एक कलर का हो सकता है, जिसमें से एक कलर हार्ट भी है। तो इसको हार्ट बोलते हैं, इसको क्लब, इसको स्पेड, और ये डायमंड, यही है ना? आई थिंक आई एम करेक्ट नाउ। दिस इज हार्ट, this is club, this is spade, and this is diamond. ओके, तो ये जो है आपका हो गया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, देन व्हाट इज द नेम फॉर दिस? spade. And what is the name for this? Club. Okay, ओके, थैंक्स फॉर दैट शशांक। ओके, तो ये प्लेइंग कार्ड्स के मतलब चार कलर्स होते हैं, तो जिसमें हमने ये आपने बताया जैसा, तो ये चार कलर्स हैं। तो हार्ट्स और किंग्स जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि किंग जो है वो हार्ट का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि अगर एस मतलब इक्का है तो वो बादशाह नहीं हो सकता, या बादशाह है तो वो इक्का नहीं हो सकता, एक कार्ड कोई एक ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। Now, with this elementary definitions, we are able to formulate probability. ठीक है, so as I have told you, probability means the chance of happening or the occurrence of an event. ठीक है, that is called to be as probability. ठीक है, the chances of occurrence of an event is called to be as probability. ठीक है, एंड इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए, ऑलरेडी मैंने बता दिया इवेंट का मतलब क्या है। तो अगर किसी इवेंट ए की हम बात कर रहे हैं जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए आर डिनोटेड बाई n of a and the total number of outcomes in the sample space are denoted by n of s, then we can formulate this probability, that is p of a,
P of A का मतलब the probability of occurrence of an event A, that is denoted by P of A, will be equals to N of A upon N of S. Means the number of outcomes favorable to the event divided by the number of outcomes in the sample space. So this is the definition of probability. Any doubts you can ask, otherwise we can end up at this point. Yes, anyone having queries, you can ask. Anyone? Okay, so we are stopping here. We will continue this in the next class. Thank you all. Have a nice day.